तो मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़ चाहते हैं, लेकिन हम ब्रेकिंग का काम नहीं करते। काफ़ी पहले से ब्रेकिंग हो चुका है। अभी समय आया है कि कोरोना के दौरान भगवान बुद्धा की वाणी के द्वारा उसको फिर यूनाइट करे, फिर जोड़े, फिर कंस्ट्रक्शन करे। तोड़ना नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। तो आप आई एम श्योर आप मीडिया वाले सब इसको सुंदर से कवर करेंगे। और ये एक संयोग है कि 2006 जब बाबा साहेब के धम्म दीक्षा के 50 साल पूरे हुए, उसी 2006 में ये त्रिपिटक चैंटिंग आरंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों के द्वारा। और तब से लेकर विभिन्न विदेशी बौद्ध देश और अमेरिका जैसे देशों ने भी इसका आयोजन किया है। तो 19 साल बाद 20वां साल जो भारत को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। इसलिए शास्त्रों में कहा कि सुतंतेषु असंतेषु प्रमुखते पति रखिता संते पति थीतो धीरो योग न ढल सके। हम लोग ये रिसाइट करते रहेगा तो, क्योंकि हरियती साधना मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग दूसरों को डिलीवर कर सकता है, बता सकता है, पढ़ा सकता है। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की वाणी जिस ग्रंथ में संग्रहित की गई है उसे त्रिपिटक कहा जाता है। पाली में त्रिपिटक, हिंदी में हम उसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रि यानी तीन, पिटक यानी पिटारा, खजाना। तो भगवान की जो वाणी है, भगवान बुद्ध के जितने भी वचन थे उनको 3 भागों में बांटा गया। 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी होने जा रहा है। और उसमें पूरा दुनिया से करीब 20,000 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट मंक्स, नन्स और डिवोटीज आएंगे। और भारत से भी इस साल जो है ये जो त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी पिछले 20 साल से हो रहा है। तो इस साल इज होस्टेड बाय इंडियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी। और वेनरेबल संघा मेंबर्स, on behalf of the International Tripitaka Chanting Council, India, I wish to welcome all the media fraternities of the Bombay in this press club. We have with us the important members of the International Tripitaka Chanting Council, Most Venerable Agdadhammo Thero, Vice President, and Most Venerable Vinarakita, the General Secretary, and Most Venerable Bhikkhuni Dhammadina, Treasurer of our committee members. We are here for a very, very historic, very significant programs. That is, first let me go a little bit of the background of the events which are going to happen at Buddha Gaya. As you know, Buddhism is one of the major religions of the world. Buddhism is the major religions, one of the major religion of the world. This great religion known as Buddhism was born in India at the holy place Buddha Gaya under the Bodhi tree 2,600 years ago. And from there, this beautiful religion, the religion of compassion, the religion of peace, the religion of harmony, a religion of equality, was started from this holy place, Buddha Gaya. And from there it keep on growing. First started as the light of Bihar, then it became the light of India, then it became the light of Asia. Today it has become the light of the world. Today the fastest growing religion in the world, Western countries, is Buddhism. And now
the whole world is looking at Buddhism as a last hope for the survival of mankind. You know, this is the background, and unfortunately, this great religion in its own birthplace, India, slowly declined and disappeared almost completely in few places, except few places in the Himalayas. But fortunately, it keep on spreading and growing in all the directions. So now again, 20 years back, one renowned Tibetan Rinpoche by name Talkang Tulku and his daughters Wangmo Dikshit had initiated a very great steps, great initiative of the revitalizing the Buddha Dharma in its birthplace in the form of Tripitaka chanting 20 years back. And since then, this international Tripitaka chanting ceremony has been growing and growing until this year. This ceremony, last 19 years, have been sponsored, have been organized, hosted by different Buddhist countries, Buddhist devotees outside India. This year is a very historic, for the first time in the history, that this great event, the most auspicious, most holy Tripitaka chanting ceremony is hosted by Indian Buddhist community. First time. This is going to start on the 2nd of December until the 12th of December 2025 at Buddha Gaya. Very, very historic indeed for the first time. Great step in the revival of Buddhism, which Dr. Babasaheb Ambedkar also was responsible to start the revival of Buddhism, right? So this year we are expecting a very large number of participants from all over the world, including more than 23 or 4 Buddhist countries. 20,000 participants are expected from the 2nd to the 12th of December 2025. And many high-ranked, highly respected senior Buddhist monks, nuns, devotees, including many government officials, ministers, governors, chief ministers, are expected to join this. Already several cabinet ministers from government of India, like Minister of Tourism and Culture, Ministers of Parliamentary Affairs and Minorities, Kiran Rijiju, and the chief ministers and the deputy chief ministers with several other ministers from Arunachal Pradesh confirmed to participate in this, and also Home Minister from Karnataka, several ministers from Maharashtra, including from Ladakh and other parts of India. This is truly a very significant historic programs. I sincerely hope and appeal to all the follower of Buddha Dharma who believes in these beautiful teachings of Buddha, request, appeal to come and join this historic Tripitaka chanting ceremony at the holiest of the holy place of the Buddhist world, the Buddha Gaya. And please support this historic movement. It is a great honor and privilege, an opportunity for the Buddhist community to host this historic international Tripitaka chanting ceremony. And there are details of how to register as volunteers, as participants, as if you wish to support of any of these events, the 10 days programs. Please go to the website of the International Tripitaka Chanting Ceremony, and as soon as possible, please register this.
as volunteer or as participants or as sponsors. Very important. Friends, the greatest gift India has given to the world is the beautiful, compassionate teachings of the Buddha. If India has to become a Vishwa Guru, which many of the Indian people talk about, it's not a question of becoming a Vishwa Guru. Lord Buddha and his beautiful teachings already made India a Vishwa Guru. Yes, without the Buddha's teachings, it's not possible for India to become Vishwa Guru. The teachings, the beautiful teachings of compassion, peace, wisdom, harmony, love, all spread already in every nook and corner of the world. Therefore, India is already Vishwa Guru, if we talk about this Vishwa Guru. The greatest gift India has given is the teachings of non-violence, the peace and harmony and compassion. Friends, let us come together once again after a long time at this holy place, Buddha Gaya, not only for our own personal spiritual development, but for the peace and harmony, prosperity of our great country, India, as well as the whole world. As I mentioned earlier, the whole world is looking at these peaceful religions, Buddhism, as the last hope. The state who has the largest follower of Buddha Dharma because of the Bodhisattva Baba Sahib Dr. Ambedkar. And certainly we hope to have the largest participants, largest volunteers, and largest supporters from Maharashtra. And Maharashtra is also there. Bombay is the financial capital of our country. So I hope for this year we will have no problems or any financial crisis and volunteers and other manpowers. Having said this, now I'll request our most venerable Agadhamo, the Vice President, or the most venerable Vinaya Kita, General Secretary, to throw more light on the subject. Thank you. सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध को नमन, जिन्होंने हमें दुख मुक्ति का मार्ग दिया। कृतज्ञता भिक्षु संघ का, जिन्होंने इस धर्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि बोध गया में महाबोधि विहार जहाँ पर है, उस बोधि वृक्ष के नीचे हर साल त्रिपिटक का सज्जायन किया जाता है। और ये एक संयोग है कि 2006 जब बाबा साहब के धम्म दीक्षा के 50 साल पूरे हुए, उसी 2006 में ये त्रिपिटक चैंटिंग आरंभ किया गया अंतर्राष्ट्रीय बौद्धों के द्वारा। और तब से लेकर विभिन्न विदेशी बौद्ध देश और अमेरिका जैसे देशों ने भी इसका आयोजन किया है। तो 19 साल बाद 20वां साल जो भारत को इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है। तो 19 साल क्यों लगे, ऐसे कुछ लोगों को लग सकता होगा कि 19 साल क्यों लगे, जब भारत बुद्ध की धरती है, बुद्ध यहाँ पर जन्मे, बोध गया में उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो फिर भारत को 19 साल बाद ये जिम्मेदारी क्यों दी जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे विदेशी लोग ऐसा समझते हैं कि भारत में बौद्ध नहीं, पूरी तरह से लुप्त हो गए। और ये धारणा भी ठीक है, क्योंकि जितने भी विदेशी बौद्ध आते हैं वो बौद्ध स्थली घूमने आते हैं। तो बौद्ध स्थली ज्यादातर बिहार, यूपी और फिर वहाँ से नेपाल, लुम्बिनी देखते हैं, चले जाते हैं। और वहाँ पर स्टेट में ज्यादा बौद्ध नहीं। अगर वो नॉर्थ ईस्ट जाते तो पता चलता, कम से कम लद्दाख ही चले जाते तो पता चलता, नहीं तो कम से कम महाराष्ट्र आते तो पता चलता कि नहीं भाई यहाँ पर बौद्ध है। तो उनको लगा कि यहाँ पर तो बौद्ध नहीं है, तो यहाँ पर कुछ करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने ये त्रिपिटक सज्जायन चैंटिंग जो है 2006 में पहले अमेरिका और महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया श्रीलंका की उन्होंने आरंभ किया। और जैसे 2-4 साल बीते तो फिर वो बोध गया से निकलकर बाहर भी जाने लगे। तो ऐसे बाहर स्टेटों में करते करते फिर वो यहाँ साउथ में भी आए, महाराष्ट्र में आए, जैसे मुंबई में भी किया,
नागपुर में किया, पिछली बार तो हैदराबाद में, चेन्नई में। तो इस तरह से जब उन्होंने घूमा तो उनको लगा नहीं, भारत में भी बहुत नहीं तो काफी बहुत तो है और सक्षम है, वो भी ये कार्यक्रम की जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो इसलिए ये 20वां और 21वां 2025 और 2026 का जो नेतृत्व है वो भारत को दिया गया है। तो ये जो है ये 20,000 लोगों के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। जैसे 20,000 पहुंच जाएगा ये टारगेट तो रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। तो जो रजिस्टर करेंगे उनको खाने पीने की व्यवस्था होगी, उनको आईडी कार्ड मिलेगा, तो उनको एक्सेस भी रहेगा कल्चरल प्रोग्राम में। कहो बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर चांटिंग में भाग लेना। इसका मतलब ये नहीं कि 20,000 का टारगेट खत्म हो उनके बाद लोग नहीं आ सकते, नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनको अपना अपना इंतजाम करना होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी महाराष्ट्र से हो या पूरे देश से, क्योंकि भारत को पहले बार ये मेजबानी मिला है, तो ये हम सारे भारतीयों का कर्तव्य है कि हम तन मन धन से इसको एक अच्छा ग्रैंड प्रोग्राम और सक्सेसफुल प्रोग्राम बना सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि बॉम्बो टैक्सी जो अमेरिका से है, बेसिकली टिबेटन है, उन्होंने ये आरंभ किया। बहुत से लोगों को पता नहीं होगा बांते जी मोस्ट वेनरेबल अग्गाधामो महाथेरो is very senior, topmost senior Bhante from Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश आप सब जानते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में जिस स्टेट में, जैसे यहाँ वेस्ट में महाराष्ट्र है, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बुद्धिस्ट फॉलोअर्स और संघा मेंबर्स हैं। वहाँ का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, डिप्यूटी मिनिस्टर सब बुद्धिस्ट है, MLA है। वहाँ से मैक्सिमम सपोर्ट वहाँ से आ रहा है, महाराष्ट्र और उधर से वेस्ट से महाराष्ट्र, ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने तो पूरा एक ट्रेन बुक किया है वहाँ से जो वॉलंटियर्स एंड सपोर्टर्स आने के लिए। चीफ मिनिस्टर, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, several minister, MLAs, all are coming. So we have been very fortunate to have Bhante as vice president of our committee. So it's a great honor to have Bhante. प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें तो हम क्या बोल सकते हैं, सब कुछ बंटी ने बोला और ये हमारे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी ने भी बोला उसके बारे में। हमें एक इस बार जो हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि लद्दाख में भी हमने कहा, वहाँ पे बंटी ने वहाँ अरेंज किया था। इस बार तो हम लोगों को इतना मिला दिया कि पूर्व से पश्चिम, उत्तर दक्षिण सब हम लोगों को एकत्रित एक जगह पर, ये भोजन दान के वजह से, त्रिपिटका चांटिंग के वजह से हम सभी लोग यूनिटी होने जा रहे हैं, हो रहा है। तो इसीलिए इसी में काम उसको कंटिन्यू करके रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में भी सुख में दुख में, ये तो बुद्ध ने भी कहा, बंदे लोग आप सभी लोग जानते हैं कि यूनिटी है। बौद्ध धर्म जो है एक पीस, शांति, एक खोज है, शांति और यूनिटी का ही ये बौद्ध धर्म जो हम लोग जो मानते हैं। तो इसीलिए आज जो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, फिर वहाँ ये 2 तारीख दिसंबर से लेकर के जो 12 तारीख तक, 13 तारीख तक जो चांटिंग करेंगे, वो है हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया कि हम लोगों का जो पता ही नहीं था, हम लोगों का जो बुद्धिस्ट होते हुए भी हम लोगों को पता ही नहीं कि ये त्रिपिटक रिसाइट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चैंटिंग करना चाहिए। ये हम लोग अपना अपना मंदिर में, अपना अपना घर में हम लोग पूजा करता है या कुछ चैंटिंग होता है, ऐसे इतना भर में ही रहता है। लेकिन ये वांगमो जो है वो अमेरिका से रहते हैं, उसका पिताजी तो रिम्पोचे है। जो उधर 2 बहन है, एक भाईजान को सपोर्ट करता है और ये वांगमो जो है उसका उम्र 30 ईयर्स के समय से वो मतलब ये बुद्धिज्म का त्रिपिटक चैंटिंग 19 ईयर्स तक हो गया, अभी तो 50 का वो हो गया। तो इसीलिए हमको बुलाया था ऐसे
आइए थोड़ा मीटिंग करेगा, ऐसे बात इतना ही है। तो उसके बाद में भांटे साहब सभी लोग कहा कि आप वाइस प्रेसिडेंट का चार्ज लीजिए। तो ऐसे वो ले करके हम गया तो कुछ लोग तो कमेंट किया, अरे आप इतना बड़ा भार जो लिए, उसका जो इतना भार लेकर के आप अकेले कैसे लिया, ये काम होगा कि नहीं होगा, ये हमें पूछे। हमने कहा कि आप ये वाइस प्रेसिडेंट भार लेने के लिए मैं नहीं गया, हमको बुलाया कि आप आइए मीटिंग होगा यहाँ पर। किस विषय में मीटिंग होगा? आज त्रिपिटक चैंटिंग के बारे में। तो सिंपल है, जाना चाहिए करके मैं आया। जब कोई भी बुलाते तो मैं तो जाता। तो इसीलिए वहाँ पर चैंटिंग में गया तो हमको वाइस प्रेसिडेंट दिया। फिर हमको पूछा कि हम लोग ये लद्दाख का जो भांटे संघ सेना को हम लोग वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंटशिप देगा। हमने कहा बहुत अच्छा, सारू सारू, ये सब मोस्ट लर्निंग है, उसको देना चाहिए। सबसे पहले विनय पिटक के अनुसार हम लोग फॉर्मेलिटी जो भी करते हैं वो हम लोग विनय पिटक रूल रेगुलेशन क्या क्या सब। लेकिन असली जो है, जैसे कि शुद्ध पिटक में जो है धर्म कैसे प्रवचन करना है, कैसे हम लोग उपदेश देना, डिलीवर करना, तो शुद्ध पिटक में ज़्यादा है। वो तो विनय के बारे में रहन सहन कैसे मोंग लोगों का वो नीति नियम, भिक्षुनी लोगों का नीति नियम उसमें लिखा है, उसको वो पालन करते हैं। तो उसके बाद में फिर हम लोग ये अभिधर्म पिटक हम कहते हैं। अभिधर्म पिटक तो आपको एडवांस लेवल में निर्वाण व्रत तक पहुँचा देंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा कि सुतंतेषु असंतेषु प्रमुद्धते पति रक्षिता संते पति थीतो धीरो योग हेम न दंसते। हम लोग ये रिसाइट करते रहेगा तो, क्योंकि अरियती साधना मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले उसको पढ़ना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी हम लोग दूसरों को डिलीवर कर सकता है, बता सकता है, पढ़ा सकता है। तो इसीलिए ये परियति का जैसे छात्रों का वो जो है परियति को इम्पोर्टेंट देना है, पढ़ाई लिखाई। उसके बाद में जो है तो हम ये परियति और पतिवेदा उसको रक्षा करेगा, तभी इस संसार में योग क्षेमा न ढंस सके। इस योग में, इस संसार में कभी भी लुप्त नहीं होगा। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग त्रिपिटक के बारे में जानते हैं, सभी लोग जानते हैं त्रिपिटक, लेकिन कभी पढ़ा नहीं है, कभी देखा नहीं है। और इसलिए कोई कोई जगह ऐसे होता है, सब लोग अपना अपना भाषा से, अपना अपना लैंग्वेज से, वो सूत्रों का हो, विनय का हो, अभिधर्म का हो, उसको ट्रांसलेट करके लेते हैं। वो पढ़ते पढ़ते यंग जनरेशन लोग ये त्रिपिटक के बारे में पता नहीं लगता है। तो इसीलिए अभी जो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, जो बोधगया चैंटिंग है, त्रिपिटका चैंटिंग है, उसमें एक चांस मिला कि हम लोगों को यंग जनरेशन, यंग लोग आ करके पढ़ना चाहिए। नवोदय बंदे जी को मेरा वंदन है। जैसे कि आपका प्रश्न है कि त्रिपिटक चैंटिंग इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका टाइटल बता देती हूँ कि जैसे हम लोग जानते हैं भारत में क्योंकि बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ इतिहास में, उसकी वजह से ये शब्द कहीं लुप्त सा हो गया। सभी धर्मों के अपने धर्म ग्रंथ होते हैं, जैसे कि हिंदू में रामायण महाभारत या भगवत गीता है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, क्रिश्चियन में बाइबल है। सभी धर्मों के अपने अपने धर्म ग्रंथ होते हैं। इसी प्रकार से भगवान बुद्ध की वाणी जिस ग्रंथ में संग्रहित की गई है उसे त्रिपिटक कहा जाता है। पाली में त्रिपिटक, हिंदी में हम उसे त्रिपिटक कहते हैं। त्रि यानी तीन, पिटक यानी पिटारा, खजाना। तो भगवान की जो वाणी है, भगवान बुद्ध के जितने भी वचन थे उनको 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि भंते जी ने बताया। विनय यानी कि नियम, सुत्त यानी कि भगवान की जो दिन प्रतिदिन की देशनाएं थी, और अभिधर्म यानी कि हमारे चित्त के विषय में जो साइंस है एक तरह से वो। तो ये जो 3 संग्रहित किए हुए जो खजाने हैं, इसे ही त्रिपिटक कहा जाता है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब किसी भी धर्म में जब हम लोग संगायन करते हैं या पठन करते हैं, तो उसे हम लोग पूजा या प्रार्थना का नाम जिस तरह से देते हैं।
भगवान बुद्ध के वचनों में प्रार्थना नहीं होता, क्योंकि हम जब भगवान बुद्ध के वचन पढ़ते हैं पाली भाषा में, हम उनसे कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि उनके वचनों को हम बार बार पढ़कर उसका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तो हम प्रार्थना नहीं करते, इसीलिए हम लोग इसे संगायन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आप चैंटिंग कह सकते हैं या रेसिटेशन कह सकते हैं, कि हम उनके वचनों को बार बार दोहराते हैं ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकें और उसका अनुसरण कर सकें। तो इसीलिए इस कार्यक्रम का जो नाम है वो है त्रिपिटक चैंटिंग। त्रिपिटक यानी कि भगवान बुद्ध के जो वाणी है, उसका जो ग्रंथ है, उसका चैंटिंग यानी कि बार बार उसका पठन करना। तो लगातार अनवरत 19 वर्षों से ये संगायन चल रहा है। सुत्त पिटक समाप्त हो चुका है ऑलरेडी 19 सालों में, क्योंकि 10 दिन के लिए संगायन होता है। पिछले 17 वर्षों में सुत्त पिटक पूरा संगायन हो चुका है। पिछले 2 वर्षों से विनय पिटक शुरू हुआ है और विनय पिटक भी आने वाले कुछ समय में समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में अभिधम्म का संगायन शुरू होगा। तो जैसे 10 दिन में जितना संगायन हो जाता है, जहाँ पर स्टॉप होते हैं हम लोग 10वें दिन, उसको नोट करके रखा जाता है और अगले वर्ष वहीं से उसकी फिर आगे की शुरुआत की जाती है। This started in Bodh Gaya, Bihar, because that was the land of enlightenment of Buddha. After that, it started in many different places of India. Now it is happening in many different places of India, one-day chanting, and it also happens in Sri Lanka and US also. Many places, the first it starts from Bodh Gaya every year for 10 days. After that, many places in UP like Sarnath, Lucknow, and many other places. In Maharashtra, in Nagpur, it had happened for last 8 years, and many places in Maharashtra, many places in UP and Bodh Gaya. South India also, yeah. This year it went on South India also. ऐसा और जानकारी आपको बता देती हूँ कि ये त्रिपिटक चैंटिंग में सभी को अपना रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास में एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों के सुबह के नाश्ते की 10 दिन तक सुबह के नाश्ते की और दोपहर के भोजन की व्यवस्था की जाती है और साथ ही में सभी के सिटिंग अरेंजमेंट की भी व्यवस्था की जाती है। सभी के लिए एक स्थान सुनिश्चित होता है और साथ में किताबें छापी जाती हैं और सभी को वहीं से किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो, भिक्षुणी हो या आपकी तरह गृहस्थ हो, वो सभी उस किताब को वहां से लें और उसे 10 दिन तक साथ में बैठकर संगायन कर सकें। तो इसीलिए हमारे पास में एक नंबर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हर साल इसका एक रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपका वहाँ पर आई कार्ड मिलता है और उस आई कार्ड से ही पता चलता है कि आप इसका एक हिस्सा बन चुके हैं। तो ये जो लिंक आपको इसमें दिया गया है, पीछे बैनर पे भी लिंक दिया गया है और बहुत सारी जितनी भी सोशल मीडिया पर पोस्ट है वहाँ पर आप लिंक देखेंगे। इस लिंक पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप एज अ पार्टिसिपेंट, जैसे भंते जी ने पहले भी बताया, एज अ पार्टिसिपेंट आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप एज अ वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एज अ मीडिया पर्सन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे उसमें कैटेगरीज हैं। ले डिवोटीज कर सकते हैं, मंक्स, नन्स, अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं और अपना स्थान सुनिश्चित करा सकते हैं। ये शुरुआत भारत में ही हुई है, लेकिन शुरुआत अमेरिका के द्वारा हुई है। तो अमेरिका के, जैसे भंते जी ने आपको पहले भी जानकारी दी, जो अमेरिका के जो रिनपोचे जी थे, उनकी जो पुत्री हैं वांगनो जी, उन्होंने ये शुरुआत की है। तो ये अनेक देशों में तो नहीं कहूँगी, लेकिन श्रीलंका और यूएस में हुआ है। लेकिन इस चैंटिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो भारत को पुनः बौद्धमय करना है। इसलिए इसका जो मूल केंद्र होता है वो भारत होता है, अन्य देश नहीं होते हैं। भारत में अनेक स्थानों पर ये हो रहा है। शुरुआत केवल बोध गया से हुई, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, अनेक शहरों में इसका संगायन होता है। बुद्ध गया टेम्पल का एक इशू चल रहा है, आंदोलन, वो अभी कोर्ट में है, उसका अपना चल रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप सब समझिए कि हमारा जो त्रिपिटक, इंटरनेशनल त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी है, वो बिल्कुल अलग सा है, वो आंदोलन से संबंध नहीं है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी कर रहा है, वो रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म और पूरा दुनिया की शांति के लिए कर रहे हैं। ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। It has a time schedule. It starts in the morning with 5:30 with the breakfast. So everyone will have breakfast from 5:30 to 7 o'clock.
and then 7 o'clock under the Bodhi tree we start chanting every day. The time schedule goes from 7 o'clock to 9 o'clock, and then we have a 15-minute break for toilet or for tea break, and then 9:50 we start again, and then we finish at 10:45 for lunch break, because the Sangha, the Buddhist monks and nuns, they have a rule of having lunch before 12. So we finish at 10:45 usually, and then we have a lunch break till 1 o'clock. And then we start at 1 o'clock again, and 1 to 3 o'clock, then we give 15-minute break, and then 3:15 we start again, and it's finished at 5 o'clock. And then every day from 5:30 to 6:30 is one Dhamma talk, like pravachan, like giving teachings. So the monks from different countries, from England, from Europe, from America, and many Thailand and Cambodia, many senior monks, they come and they give Dhamma talk every day from 5:30 to 6:30 under the Bodhi tree. This is the time schedule for every day for 10 days. ये जो बुद्धगया में होने जा रहा है पिछले 20 साल से कर रहा है, और इतने हाई स्टैंडर्ड में करते हैं. एवरीथिंग इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, और एवरी पार्ट ऑफ द होल बुद्धगया टेम्पल इज सो ब्यूटीफुली डेकोरेटेड. जो डेकोरेशन का सामान, फ्लावर्स आते विदेश से आते हैं, थाईलैंड, कंबोडिया पर, इतने सुंदर है. हाँ, इतने सुंदर है. इट इज मैं समझता हूँ कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए. इट इज़ लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एक इवेंट्स प्रोग्राम है. डोंट मिस इट. आना बहुत ज़रूरी है. आपके जीवन बदल जाएंगे वहाँ से. मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूँगा, एक सुंदर सा उसको प्रचार करिए, सुंदर से कवर करें. प्लीज़ कवर इट वेरी नाइसली. इट इज़ for the well-being, for the happiness of not only our own country but for the whole world. आज दुनिया में सबसे ज़रूरत क्या है? बुद्ध धर्म का है. किसी ने महात्मा गांधी को पूछा गया कि आज के समय सबसे बड़ा संकट क्या है? महात्मा गांधी ने ऐसे जवाब दिया, सुनने में आया कि आज के समय के जो सबसे बड़ा संकट है, मनुष्य की हृदय में करुणा का सागर सूख जा रहा है. आज भगवान बुद्ध के जो करुणा, मैत्री, ध्यान, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में. आइए हम लोग सब मिल करके ये सुंदर बुद्धवाणी को फिर से एक दफ़ा भारत में और भारत से फिर दुनिया में प्रचार करके दुनिया की शांति के लिए, हाँ, दुनिया के प्रॉस्पेरिटी के लिए हम लोग सब मिल के करें. और मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है. मीडिया इज़ वेरी पावरफुल, है ना. आप मैं वो शेयर करूं. कुछ साल पहले दिल्ली में एक महाकरुणा प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज किया, महाकरुणा. तो हमारे कुछ मेंबर ने मीडिया को बोला, भाई कैन यू कम एंड मेक ए कवरेज ऑफ दिस महाकरुणा प्रोग्राम. उन्होंने बोला, व्हाट इज महाकरुणा? महाकरुणा क्या है? बोला, ग्रेट कंपैशन. अरे कंपैशन क्या करना, हमें वी वांट ब्रेकिंग न्यूज़. तो हमने, हमारे मेंबर ने बोला, आई एम सॉरी, हमारा काम, करुणा का काम है, ब्रेकिंग नहीं है, तोड़ना नहीं है, करुणा जोड़ना है, यूनाइट करना है. तो मुझे पता है ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़ चाहते हैं, लेकिन हम ब्रेकिंग का काम नहीं करते. काफ़ी पहले से ब्रेकिंग हो चुका है. अभी समय आया है कि करुणा के द्वारा, भगवान बुद्ध का वाणी के द्वारा उसको फिर यूनाइट करे, फिर जोड़े, फिर कंस्ट्रक्शन करे. तोड़ना नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है. तो आप, आई एम श्योर आप मीडिया वाले सब इसको सुंदर से कवर करेंगे, ताकि हमारे देश में और दुनिया में भगवान बुद्ध की वाणी के द्वारा शांति फिर से एक दफ़ा प्रॉस्पर आए. जैसे पहले बताया है कि 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी होने जा रहा है. और उसमें पूरा दुनिया से करीब 20,000 से भी ज़्यादा बुद्धिस्ट मंक्स, नन्स और डिवोटीज आएंगे. और भारत से भी इस साल जो है, ये जो त्रिपिटक का चैंटिंग सेरेमनी पिछले 20 साल से हो रहा है. तो इस साल इस होस्टेड बाय इंडियन बुद्धिस्ट कम्युनिटी. पहला बार इतिहास में हमारे भारत के बौद्ध लोगों की ओर से ये जो इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग 20वां जो करने जा रहा है,
ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक है और बहुत ही सुंदर से करते हैं। ये पूरा विश्व के लिए एक बहुत ही शांति का एक प्रोग्राम है। पिछले 19 वर्षों से लगभग हर साल 12 से 15,000 लोग जुड़ते हैं, क्योंकि 19 वर्षों से भारत एक बार भी मुख्य आयोजक देश नहीं रहा, तो 12 से 15,000 लोग प्रत्येक वर्ष जुड़ते हैं। परंतु इस बार भारत मुख्य आयोजक है तो 20,000 से भी अधिक होंगे, लेकिन हमारे पास स्थान केवल 20,000 का है, तो हम लोग मैक्सिमम 20,000 संख्या को स्वीकार करते हैं। भगवान बुद्ध के संदेश पाली भाषा में हम लोग चैंटिंग करते हैं, उसको संगायन करते हैं, परंतु उसके बाद जब बीच में ब्रेक होता है तो ब्रेक में उसका अनुवाद हिंदी में या जो भी लोकल भाषा जहाँ पर मेजोरिटी है उस भाषा में उसका अनुवाद वहाँ पर बताया जाता है, समराइज किया जाता है। उसका क्राइटेरिया क्या रहता है कि ये लोग जुड़ सकते हैं? आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप एज ए पार्टिसिपेंट भी, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति देश का हो, हर व्यक्ति इस संगायन में आके जुड़ सकता है, कोई क्राइटेरिया नहीं। पहले ये 20 साल पहले शुरू किया था। पहले तो विदेशी लोग जैसे थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस सब ने किया थे। अभी इस साल की हमारे भारत के बौद्ध लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और चैंटिंग करने के लिए जो त्रिपिटक का पुस्तक है वो सब तैयार रहेंगे और उनको रहने के लिए टेबल वगैरह सब कुछ वेरी वेल ऑर्गेनाइज किया है। वो पाली में चैंटिंग होगा। भगवान बुद्धा ने जो उपदेश दिया है 45 ईयर्स है ना, 45 साल उन्होंने उपदेश दिया है, वो पूरा त्रिपिटक में रिकॉर्ड किया हुआ है। एंड दैट हैज बीन समराइज्ड फॉर त्रिपिटक 3 बास्केट में। तो उसका ये चैंटिंग होगा हर साल। कुछ पार्ट पूरा त्रिपिटक का तो बहुत हंड्रेड्स ऑफ वॉल्यूम से पूरा नहीं होते हैं, तो हर साल कुछ किताबें करके आपने सुना होगा। पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड काउंसिल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 तक हो गया। जो 6 लास्ट वन वाज बर्मा में हुआ था, म्यांमार में। अभी 5th and 6th हुआ था। अभी जो 7 काउंसिल जो 7 होगा वो हम लोग उम्मीद कर रहा है कि ये जो त्रिपिटक का चैंटिंग, पूरा त्रिपिटक का चैंटिंग होने के बाद फिर ये उसके माध्यम से ये 7वां बुद्धिस्ट काउंसिल भारत में होगा फर्स्ट टाइम। ये जो त्रिपिटक का चैंटिंग मामूली नहीं है, खाली एक चैंटिंग करती है। इट्स ए प्रिपरेशन फॉर द ग्रेट इवेंट। 7 काउंसिल विल बी हेल्ड इन इंडिया। उस दिशा में जा रहे हैं।